بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک قدیم بستی میں جہاں چیڑ کے درختوں کی مہک ہوا میں گھل کر روح کو تسکین دیتی اور دور سے پہاڑی ندی کا مسلسل شور تھا، دو جوان احمد اور عثمان رہتے تھے۔ ان کی دوستی کو گاؤں والے ایک انمول رشتے کی طرح دیکھتے تھے، جیسے ایک ہی تنے سے پھوٹی دو مضبوط شاخیں جو ہر موسم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں۔ لیکن اس گہری محبت اور تعلق کے باوجود ان کے اندر کی دنیا، ان کے ذہنوں کی ساخت مختلف تھی۔ احمد کی طبیعت میں صبح کے سورج کی سی روشنی تھی، وہ ہر نئے دن کا آغاز شکر گزاری سے کرتا اور زندگی کی ہر مشکل میں ایک نیا موقع تلاش کر لیتا۔ اس کی آنکھوں میں چمک رہتی جو آنے والے کل پر اس کے یقین کا پتہ دیتی تھی۔ اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی تھی اور اس کی زبان پر ہمیشہ مثبت الفاظ جاری رہتے۔ اس کے برعکس عثمان کا مزاج ہمیشہ اندیشوں اور شبہات میں گھرا رہتا۔ وہ ہر کامیابی سے پہلے ناکامی کا خوف محسوس کرتا۔ اگر احمد پھولوں کی خوشبو سے خوش ہوتا تو عثمان اس کے تنے پر لگے کانٹوں کی تعداد گن کر کوڑنے لگتا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ اگر مگر، شاید، کیا ہوگا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جیسے الفاظ ہوتے۔ اس کی دنیا اس کے اپنے اندیشوں کے جال میں قید تھی۔ ایک سرما کی ٹھنڈی شام، جب سورج کی سنہری کرنیں درختوں کے پتوں پر پڑ رہی تھیں، گاؤں کے چوپال میں ایک بوڑھا سوداگر رکا۔ اس نے آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے گاؤں والوں کو بتایا کہ کیسے مشرق کی جانب ایک عظیم الشان شہر ہے جس کا نام علم نگر ہے، جہاں علم و ہنر ہے۔ بازاروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہیں اور ہر ہنر مند اپنی قسمت بدل سکتا ہے۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا جادو تھا جو سننے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا۔ احمد کا دل مچل اٹھا، اس کی آنکھیں امید سے چمک اٹھیں۔ عثمان دیکھو، یہ تو قدرت کی جانب سے ایک اشارہ ہے۔ یہ شہر ہمارے لیے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ ہم بھی اس کی تلاش میں نکلیں، کچھ نیا سیکھیں گے، کوئی ہنر اپنائیں گے اور اپنے گاؤں کے لیے بھی کچھ بہتر کر پائیں گے۔ عثمان نے ایک لمبی افسردہ سانس لی، اس کے ماتھے پر فکرمندی اور آواز میں خوف تھا۔ احمد، سفر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ راستے میں بھیڑیوں کا ڈر ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ اور بیماری کا خوف الگ سے ہے۔ اجنبی شہر میں ہمیں کون پہچانے گا؟ وہاں کے لوگ شاید ہمیں قبول ہی نہ کریں۔ کیا معلوم وہاں جا کر ہمیں کام ملے نہ ملے۔ اپنا یہ گاؤں کا سکون بھی لگ جائے گا اور پھر خالی ہاتھ آ کر لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے۔ اپنی یہ چھوٹی سی دنیا ہی بہتر ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں۔ وہ احمد نے اسے بہت سمجھایا اور بالآخر عثمان ہچکچاتے ہوئے مگر بے دلی سے سفر پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے اپنی پوٹلی باندھتے ہوئے بھی کئی بار شکوک کا اظہار کیا، ہر قدم پر اسے مستقبل کی ناکامی ہی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی چھوٹی سی پوٹلیاں باندھیں جن میں خشک روٹی کے چند ٹکڑے، کھجوریں اور پانی کی ایک پرانی مشک کے سوا کچھ نہ تھا۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیارے گاؤں کو الوداع کہا۔ ان کے پیچھے اپنے کچے گھر، ہرے بھرے کھیت اور دور سے آتی ندی کی آوازیں رہ گئیں۔ کئی دنوں کی مسلسل پیدل مسافت کے بعد جب ان کے پاؤں سوج گئے، جسم تھکن سے چور تھا اور سفر کی مشکلات بڑھ گئیں، وہ ایک گھنے اور تاریک جنگل کے کنارے پہنچے۔ یہ جنگل اتنا گہرا تھا کہ دن کے وقت بھی سورج کی روشنی بمشکل ہی زمین تک پہنچ پاتی، اور درختوں کے پتوں میں ایک عجیب سی پراسرار خاموشی تھی۔ بڑے بڑے درختوں کی شاخیں آپس میں گتھم گتھا تھیں، نیچے کی طرف گھنی جھاڑیاں تھیں اور راستہ بمشکل ہی دکھائی دیتا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونوں تھی۔ واہ عثمان، یہ تو قدرت کا حسین ترین شاہکار ہے۔ دیکھو یہ درخت کتنے صدیوں پرانے ہیں۔ ان کی گھنی چھاؤں میں تھوڑا آرام کرتے ہیں، اور وہ سامنے ایک کتنا شفاف چشمہ بہہ رہا ہے، اس کا پانی کتنا ٹھنڈا اور صاف ہے۔ ہمیں تازہ دم ہونے کا موقع ملے گا۔ عثمان کا رنگ فق ہو چکا تھا، اس کے دل پر خوف نے قبضہ جما لیا۔ آرام؟ تمہیں ہوش ہے احمد؟ یہ جگہ کتنی خوفناک ہے۔ ہر جھاڑی کے پیچھے شیر، چیتے اور بھیڑیے چھپے ہو سکتے ہیں۔ یہ جنگلی جانوروں کا بسیرا ہے۔ اور اس پانی کو مت پیو، کیا معلوم اس میں کوئی زہریلی چیز ملی ہو۔ ہم بیمار پڑ گئے تو آگے سفر کیسے کریں گے؟
हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहिए वरना हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अहमद ने एक गहरी सांस ली। उस्मान की मनफी बातों को नजरअंदाज करते हुए इसने इत्मीनान से चश्मे का साफ पानी पिया जिसने इसको तरोताजा कर दिया। फिर वो दरख्त के साए में आंखें मूंद कर जंगल की ठंडी हुआ और परिंदों की सुरीली चहचहाहट से लुत्फ उठाने लगा। इसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था, जैसे इसे जंगल के हर पौधे और हर पत्थर से तवानाई मिल रही हो। जबकि उस्मान एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा रहा, इसके हाथ पुटली पर मजबूती से जकड़े हुए थे। हर सरसराहट पर लरज उठता और उसने एक कतरा पानी भी ना पिया। प्यास से इसका हल्क खुश्क होता रहा। इसकी आंखों में खौफ के अलावा कुछ न था। जंगल से बाहर निकलते ही उन्हें एक वसी सहराई इलाका उबूर करना पड़ा। सूरज आसमान पर आग बरसा रहा था और रेत हुआ के साथ उड़कर आंखों में पड़ रही थी, जिससे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। उनके गिले प्यास से कांटे बन चुके और भूख का एहसास शिद्दत इख्तियार कर चुका था। हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उन्हें दूर एक बुजुर्ग शख्स रेत पर बैठा नजर आया जो प्यास से बेहाल लग रहा था। इसके खुश्क होंठ और बेजान नजरें बेबसी से आसमान की तरफ उठी हुई थीं। अहमद ने इसकी तरफ इशारा किया, उस्मान वो देखो, कोई भूखा प्यासा मुसाफिर है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये इस गर्मी में बेहाल हो रहा है। अगर इसे पानी ना मिला तो ये अपनी जान से चला जाएगा। उस्मान ने एतराज किया, अहमद, हम खुद मर रहे हैं। हमारा अपना पानी और रोटी खत्म हो चुकी है। हम भूखे और प्यासे हैं। अगर हमने इसे कुछ दिया तो कल हमारा क्या बनेगा? अपने लिए बचा कर रखना अक्लमंदी है। इस सहरा में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई अपनी जान बचाता है। लेकिन अहमद ने उस्मान की एक ना सुनी। इसने अपनी पोटली से रोटी का आखिरी टुकड़ा और अपनी मुश्क में बमुश्किल बच्चे चंद कतरे पानी बुजुर्ग को पेश किया। बाबा जी, ये लीजिए, अल्लाह ने रिज्क दिया है, अब भी नोश फरमाइए। ये गर्मी बहुत शदीद है। शायद अल्लाह ने हमें ही अब की मदद के लिए भेजा है। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई जो पहले मायूसी से भरी थी। इसने रोटी खाई और पानी पिया। इसके चेहरे पर सुकून फैल गया। इसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो इसने अहमद की तरफ देखा। जाते हुए इस बुजुर्ग ने अहमद के हाथ में एक छोटा सा बेरंग पत्थर रख दिया जो देखने में बिल्कुल आम सा था। बेटा, तुमने इस सहरा में मेरी प्यास बुझाई है। अल्लाह तुम्हारी राहों को रोशन करे। ये पत्थर बज़ाहिर आम है, मगर इसमें शफकत और हर दिल का दर्द महसूस करने की ताकत है। ये तुम्हारी हर मुश्किल में काम आएगा। इसे संभाल कर रखना, ये एक कीमती खजाने से भी बढ़कर है। उस्मान ने इस बात पर बुलंद आवाज में कहकहा लगाया, कैसा बेवकूफाना सौदा है अहमद। अपनी जान पर बन आई थी। इस वक्त भी कुछ मांगना था तो दौलत मांगते, अपने लिए खाना मांगते। ये पत्थर क्या काम आएगा? काश मैं भी इस बुजुर्ग के करीब होता तो इसे सोने का मशवरा देता, खाना मांगता। अहमद ने मुस्करा कर पत्थर अपनी पोटली में रख लिया। इसे इस बुजुर्ग की दुआओं में ज्यादा यकीन था। उस्मान मुसलसल शिकायत करता रहा कि इसने अपना खाना और पानी ज़ाय कर दिया। उनकी मजीद कई घंटों की प्यास और भूख ने उस्मान को शदीद कमजोर कर दिया, जबकि अहमद को इसके नेकी के अमल ने अंदरूनी ताकत बख्शी। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वो एक अजीम अलशान शहर तक पहुंचे। शहर में दाखिल होते ही उन्हें एक जगह बड़ा हुजूम दिखाई दिया। वहां शहर के सबसे नामवर हकीम और तबीब अपने फिन का मुजाहरा कर रहे थे, जो जड़ी बूटियों और दवाओं के इल्म में माहिर थे, और उनकी शोहरत 7 समंदर पार तक फैली हुई थी। वो नए और ज़हीन शागिर्दों को तालीम देने के लिए बुला रहे थे, और ये एक ऐसा मौका था जो सदियों में एक बार मिलता था। अहमद की आंखों में एक नई चमक उभरी। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस्मान, ये तो किस्मत का दरवाजा है। देखो, ये शहर इल्म हुनर का मरकज है। हम भी इस हकीम के पास चलते हैं। अगर हमने ये सीख लिया तो न सिर्फ हमारी जिंदगी सांवर जाएगी, बल्कि हम लोगों की भलाई भी कर सकेंगे और अपने गांव की खिदमत भी कर पाएंगे। उस्मान ने बेजारी से हाथ झटकाया। अहमद, यहाँ इतने ज़हीन लोग हैं, और वो भी शाही खानदान से और बड़े बड़े शहरों से आए हैं। हमें कौन पूछेगा?
हम गांव के सीधे सादे लोग ये मुश्किल इल्म कैसे सीख पाएंगे? ये वक्त का जिया होगा, बेहतर है कोई छोटा मोटा काम ढूंढी और कुछ पैसे कमाएं ताकि भूख से ना मरे। अहमद ने उस्मान से मजीद बहस नहीं की। इसे मालूम था कि उस्मान की मनफी सोच इसे किसी बड़े कदम की तरफ बढ़ने ना देती। अहमद ने उस्मान को इसके हाल पर छोड़ा और खुद उस्ताद हकीम के पास गया, अदब से खड़ा हो गया। उस्ताद हकीम ने अहमद की आंखों में चमक, इसके चेहरे पर सीखने की सच्ची लगन देखी जो हुजूम में किसी और में नजर न आई। उन्होंने इसे कबूल कर लिया और सिखाना शुरू कर दिया। उस्मान शहर में छोटी मोटी मजदूरी ढूंढने लगा, कचरा उठाता, सामान ढोता और दिन भर मशक्कत करता रहता। इसकी मनफी सोच इसे कभी किसी बड़े और बेहतर काम की तरफ कदम बढ़ाने न देती और वो हर रोज अपनी किस्मत को कोसता और दूसरे की कामयाबियों से जलता रहता। कई माह तेजी से गुजर गए। अहमद ने उस्ताद हकीम से दिल लगाकर मेहनत की, दिन रात इल्म हासिल किया और उनका सबसे होनहार शागिर्द बन गया। वो सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने जड़ी बूटियों को समझा, उनकी पहचान सीखी और मरीजों की खिदमत को अपना मकसद बना लिया। इसने दवा साजी के नए तरीके भी सीखे और गरीबों की मदद को तरजीह दी। इसकी मुस्बत सोच, लगन, इस्तिकामत और दूसरों की मदद का जज्बा ही इसे इस मकाम तक लाया था। उस्ताद हकीम इसकी लगन और नेक दिली से बहुत मुतासिर थे। एक दिन उस्ताद हकीम ने इसे अपने पास बुलाया और कहा, अहमद, तुमने मेरे इल्म का हक अदा कर दिया। तुमने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी बल्कि उनसे रूह का रिश्ता कायम किया है। अब तुम उसके अगले उस्ताद हो जाओ और दुनिया में इस इल्म से लोगों की भलाई करो। मुझे तुम पर फख्र है और मुझे यकीन है कि तुम मेरा नाम रोशन करोगे। अहमद ने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया और शहर में अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली जहां वो गरीबों का मुफ्त इलाज करता। इसकी नेक नामी हर तरफ फैलने लगी, यहां तक कि लोग दूर दराज इलाकों से भी इससे मशवरा लेने आते। इसकी शोहरत बादशाह तक भी पहुंच चुकी थी। इसी दौरान शहर में एक अजीब व गरीब और खौफनाक वबा फैल गई। शाही हकीम और शहर के तमाम बड़े मुआलिजीन इस वबा का इलाज करने में नाकाम थे और बादशाह समेत हर कोई सख्त परेशान था। कोई उम्मीद नजर न आती। इसी दौरान वो बूढ़ा तबीब जिसे अहमद ने सहरा में रोटी खिलाई थी, एक बार फिर शहर आया। वो दरअसल एक अजीम रूहानी मुआलिज था जो रूप बदल कर सफर करता था। इसे मालूम था कि इस बीमारी का इलाज एक नायाब और खास जड़ी बूटी से हो सकता है, मगर उसकी शनाख्त और इस्तेमाल का तरीका बहुत कम लोग जानते थे। इसे अहमद की नेकी और रहमदिली याद थी। इसे मालूम था कि अहमद ही वो शख्स है जो इस इल्म का सही इस्तेमाल कर सकता है और इस पत्थर का राज समझ सकता है। इसने शहर के मशहूर हकीमों और आम लोगों से अहमद का पता पूछा, सब ने इसी का नाम लिया। जब अहमद को इस बूढ़े तबीब ने बीमारी और उसके इलाज के बारे में बताया तो अहमद को वो पत्थर याद आया जो बूढ़े ने इसे सहरा में दिया था। अहमद ने अपनी पोटली से वो पत्थर निकाला। पत्थर की सतह पर एक खुफिया नक्शा उभर आया जिसमें नायाब जड़ी बूटी का मकाम और उसके इस्तेमाल का तरीका दर्ज था। ये पत्थर सिर्फ इसी वक्त अपनी असली शक्ल जाहिर करता था जब कोई रहमदिल और साफ दिल शख्स इसे देखता। अहमद ने बूढ़े तबीब की रहनुमाई में जंगल के दूर दराज इलाके से वो जड़ी बूटियां तलाश की जो इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर मलती थीं। कई दिन की मेहनत के बाद वो जड़ी बूटियां ले आया, उनसे दवा बनाई और इस वबा का इलाज शुरू कर दिया। हैरत अंगेज तौर पर वो दवा कारगर साबित हुई। शहर में जिंदगी वापस आ गई और अहमद की शोहरत दूर दूर तक फैल गई, यहां तक कि दूसरे शहरों से भी लोग इलाज के लिए आने लगे। बादशाह बहुत खुश हुआ और अहमद को अपने दरबार में सबसे बड़ा तबनखास और मुशीर का ओहदा दिया और इसे बहुत सी जागीरें और बेशबहा माल और दौलत भी अता की। अहमद ने अपनी दौलत का एक हिस्सा अपने गांव भी भेजा और वहां के गरीबों की मदद की, अपने गांव का नाम रोशन किया। उधर उस्मान जो शहर में मुसलसल अपनी मनफी सोच के साथ छोटी मोटी मजदूरी करता रहा था, इसकी जिंदगी में कोई बेहतरी न आई थी। इसके दिन सिर्फ मशक्कत और रातें शिकायत में गुजरती थीं। बीमारी की वजह से इसका काम भी रुक गया था और वो भूख और प्यास से निढाल होकर सड़कों पर आ गया था।
इसके कपड़े फट चुके थे, वो भूखा और बीमार नजर आता, इसे हर जगह अपने फैसले की गलती नजर आती थी। एक दिन इसने देखा कि शाही महल से एक शानदार जुलूस निकल रहा है और इसमें अहमद शाही लिबास में एक सजे हुए घोड़े पर सवार है। अहमद की चेहरे पर कामयाबी नुमाया थी। उस्मान अपनी आंखों पर यकीन ना कर सका। इसने अपना सर खुजा और फिर दोबारा देखा। ये इसका वही दोस्त अहमद था जो कभी इसके साथ गांव से आया था। शर्मिंदगी, नदामत और पछतावे के एहसासात ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। इसने हुजूम को चौंती हुए आगे बढ़कर अहमद को पुकारा। अहमद ने भी इसे देखकर पहचान लिया। इसने अपना घोड़ा रोका और उस्मान को अपने पास बुलाया। इसकी आवाज में मोहब्बत और अफसोस दोनों थे। उस्मान, तुम यहां इस हालत में? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम आज भी यहीं हो। क्या तुमने मेरे साथ कोशिश भी नहीं की? उस्मान की आंखों में नदामत, पछतावे और आंसुओं का सैलाब आ गया। वो जार और कतार रोता हुआ अपनी सारी कहानी सुनाई। कैसे इसकी मनफी सोच, शक और खौफ ने इसे हर मौका से महरूम किया। कैसे इसने हर अच्छे मशवरे को ठुकराया और आज वो भूख का मारा दरबदर फिर रहा है। इसने एतराफ किया कि वो हर लम्हा गलत सोचता रहा। अहमद ने इसे सहारा दिया और कहा, उस्मान, ये सब इस बूढ़े तबीब की दुआ, इसकी दी हुई निशानी और मेरी मुस्बत सोच और मेहनत का नतीजा है। याद है जब मैंने कहा था कि ये सफर हमारे लिए नए दरवाजे खोलेगा और तुमने शक किया था? याद है जब मैंने बूढ़े को सहरा में रोटी दी थी और तुमने मुझे रोका था? जब मैंने हकीम से इल्म सीखने का कहा था और तुमने इनकार किया था? तुम्हारे हर शक ने तुम्हें एक कदम पीछे धकेल दिया और मेरे हर यकीन ने मुझे एक कदम आगे बढ़ाया। अहमद ने उस्मान को अपने साथ महल ले जाकर इसे रहाइश दी, इसे साफ लिबास पहनाया और इसे बेहतरीन खाना खिलाया। इसने उस्मान को अपने पास ही रखा और इसे नई जिंदगी गुजारने में मदद की, इस उम्मीद पर कि अब वो मुस्बत सोच को अपना सकेगा। अहमद इसे समझाता रहा कि माजी को भला कर हाल को बेहतर बनाना चाहिए। वो अगरचे अब शाही आराम से रह रहा था, मगर उसके अंदर की मनफी सोच और गुजरी जिंदगी का पछतावा इसे मुकम्मल सुकून न लेने देता। इसकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ हालात बदलने से इंसान नहीं बदलता, जब तक वो अपनी सोच ना बदले। ये कहानी हमें एक हकीकत सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कमजोरी बुनती है। मुस्बत सोच, उम्मीद और नेकी का इरादा मुश्किल से मुश्किल रास्तों को भी कामयाबी में बदल देता है। ये हमें हिम्मत देता है और दूसरों की मदद के लिए उकसाता है। ये हमें चैलेंजेस को उबूर करने की कुव्वत बख्शता है, जबकि मनफी सोच, शक और बदगुमानी इंसान को हर मौका से महरूम कर देती है, इसे मायूसी के गड़े में धकेल देती है और इसे खुद अपनी कामयाबियों का दुश्मन बना देती है। ये हमारी सलाहियतों को भी मफलूज कर देती है। किस्मत का दारोमदार अक्सर हमारी नियत और हमारे अमल पर होता है और ये दोनों हमारी सोच के ताबे हैं। अगर इंसान अपनी सोच ना बदले तो बैरूनी हालात की तब्दीली भी इसे मुकम्मल सुकून नहीं दे सकती। अपनी सोच को बदलें, अपनी किस्मत को बदलें। जैसी सोच वैसा अंजाम। उम्मीद है कि आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया।